गंदा सर। सर कुणाल आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ सर, यही वाला नहीं, ये वाला नहीं किया सर, ये वाला उतना। सर ये वाला नहीं किया, 3 नंबर, नंबर 6 का, नंबर 7 किया। अच्छा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बाद में करना, ठीक है। ओके सर, सर ऊपर वाला भी दे दो, मिस्टेक है। इसका किया सर, 2 नंबर का सर सेम ही है, और 3 नंबर किया। देन सेवंथ एक्सरसाइज। हाँ ये किया। ये भी नहीं किया। सर ये किया, ये वाला सर सही है, मतलब ये वाला सेम ही था, लगा मेरे को। इस तरह। चेक योर आंसर्स। दो, यस। दो से, दो सही है, दो। बाकी जितने गलत हैं उनमें समझ में आया क्या, ये क्यों गलती की हुई है? हम्म। सर सर नंबर नंबर 4 का गलत। नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है जमीर है। आपने? अगर दास सिमर हार्ट एम स्टूडेंट वोनहाइम नोअर फियरसेन क्वाड्रोमीटर लिखा है तो वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। Zimmer had no footing thus I am a student on लिखा है। तो क्या लिखा है? दास सिमर हार्ट आगे। दास Zimmer नहीं सर, Zimmer had no footing QM thus I am a student on him, पूरा ये लिखा है। ओके, सो जो स्टूडेंट वोनहाइम है उसको ऐड में मत ले जाओ, ठीक है। जी, दास खाली आ गया हम्म। जिसमें। अगर अगर आपने ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट दास सिमर, फर्स्ट ये सब्जेक्ट ही है तो ये फर्स्ट पोजीशन पर लिखा हुआ है तो भी सही है। वर्ब सेकंड पे आएगी, ठीक है। ओके, so Akhil, check your answers, page number 70. सर से वीडियो मांगे सब पढ़ना। यस यस कुणाल बोलो। अब सर से वीडियो वगैरह मांगे सर, पढ़ना है बोल। वीडियो वगैरह मांग लेते हैं। आपकी आवाज सर कट रही वीडियो, है। सर जितना भी वीडियो है वो सब मांग के सर, मतलब पूरा
एक बार बढ़िया से देखना। बिल्कुल। ओके देन ओके सर, स्पार्क ट्रेनिंग का होमवर्क बाद में डिस्कस करेंगे। ओके सर, स्पार्क ट्रेनिंग का एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ओपन पेज नंबर 68। अखिल, अब आवाज सही आ रही है मेरी? हाँ सर, अभी आ रही है सर। आई गेस मेरा ना नेटवर्क इशू है एक्चुअली ना। मैं मेरे दोस्त के घर पे हूँ। अ, मैं सर आज लेट हो गया था, तो फिर मैं खाना खा के इसके घर पे था। यहाँ पे नेटवर्क इशू लग रहा है मेरे को। ओके ओके सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बे वाला पार्ट, Hören Sie noch einmal und ergänzen Sie die Sätze. तो listen once again and complete the sentences. ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूरन ट्रैक प्ले कर रहा हूँ, आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। ठीक है, ये ब्लैंक्स को फिल करना है सुनकर। Einheit 4, Übungen. Ü2. Die Wohnung hat 4 Zimmer, Küche, Bad, Toilette und Balkon. Rechts und links sind Kinderzimmer. Die Küche und das Bad haben kein Fenster. Das Wohnzimmer ist sehr groß. Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer haben eine Tür zum Balkon. Das Bad ist leider klein. Die Wohnung kostet nur 500 Euro. ओके सो मैं दोबारा प्ले कर रहा हूँ, जो भी रह गया है उसको कंप्लीट करना। Einheit 4, Übungen. Ü2. Die Wohnung hat 4 Zimmer, Küche, Bad, Toilette und Balkon. Rechts und links sind Kinderzimmer. Die Küche und das Bad haben kein Fenster. Das Wohnzimmer ist sehr groß. Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer haben eine Tür zum Balkon. Das Bad ist leider klein. Die Wohnung kostet nur 500 Euro. Okay, done. So, das Wohnung hat 4 Zimmer. The apartment has 4 rooms. Küche, Bad, Toilette und Balkon. Rechts und links sind right and left are Kinderzimmer. Children room. Die Küche und das Baden haben, the kitchen and the bathroom haben kein Fenster, no window. Das Wohnzimmer ist sehr groß, the living room is very big. Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer haben eine Tür zum Balkon und das Bad ist leider klein. The bathroom is unfortunately small. So leider means unfortunately. Okay. Then die Wohnung kostet nur 500 Euro. Okay. एक बार और सुनना है या फिर इनफ है? सर एक बार। Einheit 4, Übungen. Ü2. Die Wohnung hat 4 Zimmer, Küche, Bad, Toilette und Balkon.
Rechts und links sind Kinderzimmer. Die Küche und das Bad haben kein Fenster. Das Wohnzimmer ist sehr groß. Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer haben eine Tür zum Balkon. Das Bad ist leider klein. Die Wohnung kostet nur 500 Euro. Okay, then open your next page. Question number 4. Ergänzen Sie the possessive article. Complete the possessive article. Hallo Antje und Norbert. Hello Antje and Norbert. Vielen Dank für die Einladung. So, many thanks for your invitation. Or for the invitation. Einladung means invitation. So यहाँ पे बेसिकली ये दो लोग एंड ये दो लोग, सो ये गेस्ट है, ठीक है, ये गेस्ट है, ये इनके घर पे आए हैं, ओके। और ये कौन है? आंटिया एंड नॉर्बर्ट। सो डैश वोनुंग इस्ट गांस नॉय। तो अब यहाँ पे ये दोनों दो हैं, सो प्लूरल, प्लूरल इनफॉर्मल, सो ऑयर पोजेसिव आर्टिकल ऑयर। अब यहाँ पे ये है फेमिनिन, वोनु फेमिनिन है, दी है आर्टिकल दी, तो यहाँ पे ऑयरा। So eure Wohnung ist ja ganz neu. So your apartment is yes completely new. Neu means new. Norbert ist das dash Zimmer. So Norbert ist das dein Zimmer. Norbert, is that your room? So Robert says ja, das ist mein Arbeitszimmer. Yes, this is my working Zimmer, working room. Und hier links ist unsere Küche. And here left side is our kitchen. Oh, die ist aber groß. So dash Küche ist sehr schön. अब उनजरा यूज हुआ है, अवर किचन, ठीक है। देन यहाँ पर योर किचन, तो eure Küche ist sehr schön. So your kitchen is very beautiful. Ist das Zimmer von Antje? Is that the room of Antje? So yeah, das ist ihr room. So Norbert कहता है कि yes, this is her working room. Wo ist euer Schlafzimmer? Where is your bedroom? So here rest. Here right side. Und hier ist unser Wohnzimmer. And here is our living room. Möchtet ihr etwas trinken? Would you like to drink something? Möchtet ihr etwas trinken? Would you like to drink something? Okay, clear? Clear possessive article? हाँ सर। Okay, then next page, page number 70. Compositor. यूरन जी उन एरगेंसन से, यहाँ पे यूरन ट्रैक प्ले कर रहा हूँ मैं, तो आपने सुनना है और कंप्लीट करना है। बेसिकली यहाँ पे एक कंपोजिटा है जो टॉपिक हमने ऑलरेडी कर लिया है, जैसे ट्रैपा, ट्रैपा मीन्स स्टेयर्स, ट्रैपा मीन्स स्टेयर्स। ये क्या है? हाउस। सो अब लास्ट वाले नाउन का आर्टिकल, सो दास ट्रैपन हाउस।
स्टे हाउस। ओके, अब इसमें सेकंड वाले में ये क्या है, चिल्ड्रन, देन जो भी यहाँ पे प्ले होगा वो कंप्लीट करना है। एक सेकेंड। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। Ü9. 1, Die Treppe und das Haus. Das Treppenhaus. 2, Die Kinder und das Zimmer. Das Kinderzimmer. 3, der Fuß und der Ball. Der Fußball. 4, das Telefon und das Buch. Das Telefonbuch. ओके, कंप्लीट। So die Kinder, das Zimmer, 3, der Fuß and der Ball, das Telefon and plus das Book. तो क्या बनेगा कंपोजिटर, लास्ट वाली नाउ, das Kinderzimmer। Der Fußball, das Telefonbuch. Okay, now listen again. Ü9. 1, Die Treppe und das Haus. Das Treppenhaus. 2, Die Kinder und das Zimmer. Das Kinderzimmer. 3, der Fuß und der Ball. Der Fußball. 4, das Telefon und das Buch. Das Telefonbuch. Now alles klar? Okay, then please open your Sprach training book. Page number 20. House of Gaba. Richtig oder false? Check your answers. दोस्तों जर्मन में क्या है कि करेक्ट आंसर को इस तरीके से राइट नहीं करते, इस तरीके से क्रॉस करते। ओके, तो जर्मन में ऐसे राइट का टिक नहीं लगाएंगे, क्रॉस बनाते हैं। ओके, सही चीज को।
Okay, so 21, page number 21. Zimmer, rooms, was was zusammen, what does fit together? Schreiben Sie die Wörter. Write the words. So Wohnzimmer, living room, then Küchen, Kinderzimmer, children's room, Schlafzimmer, Badezimmer, bathroom, floor, hallway, house, Arbeitszimmer, working room. Okay, clear? Then 3. Compositor. Welcher Wörter kennen Sie? Which word do you know? Verbinden Sie und schreiben Sie die Wörter in die Tabelle. So connect and write the words in the table. So जो भी वर्ड निकलेगा, जो भी नाउन निकलेगी, उसका आर्टिकल देयर होगा, सो ये इस कैटेगरी में आएंगे, और जो जिसका आर्टिकल दास होगा वो इस कैटेगरी में आएंगे. ओके, सो जैसे कि टिश का आर्टिकल देयर, जाफ्ट देयर, बुक दास, रेगाल दास, कोट्स देयर, काफे देयर, श्रंक देयर, wohnzimmer there, Platz there. Okay, so computer Tisch. Then Wohnzimmer Tisch. Then Orangensaft, orange juice. Milchkaffee. Spielplatz. Spielplatz means playing area or playground. Bücherschrank. Bücherregal, bookshelves. Dutch book, German book, telephone book. And Studentenwohnheim. Student hostel. क्लियर? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका हाउस ऑफ गाबा है. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ordnen Sie die Buchstaben. Arrange the letters. Und finden Sie das Gegenteil and find the opposite. So यहाँ पे जैसे क्लाइन
पहले तो आपको लेटर्स को अरेंज करना है, क्लाइन स्मॉल, एंड अब इसका अपोजिट सर्च करना है, सो ग्रॉस बिग, स्मॉल एंड बिग, अब इनको मैच करना है, ठीक है। सो ए, इस तरीके से, क्लियर। तो ये आपका होमवर्क है, हाउस ऑफ काम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5, माइना दाइना इयरा माइन दाइन जाइन। सो यहाँ पे मस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन, प्लूरल। सो यहाँ पे हमने जेंडर फाइंड करना है। सो शूले, शूले क्या है, फेमिनिन, आउटो न्यूट्रल, ब्यूरो न्यूट्रल, किंडर प्लूरल, फ्रोइंडा मस्कुलिन, सॉरी फ्रोइंडा, अगर फ्रॉइंड होता तो फ्रेंड मस्कुलिन में आता, यहाँ पे प्लूरल है ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो ये आएगा आपका प्लूरल। देन सिमर, रूम न्यूट्रल, लहरन, आई एन लगा हुआ है, फीमेल टीचर फेमिनिन, मान मस्कुलिन, ओके। Ergänzen Sie the possessive article. Complete the possessive article. So das ist Klaus. Das war seine Schule. That was his school. Second, das sind wir. ये हम लोग हैं. Das war unser Auto. That was our car. Das bin ich. That am I. Das war dash Büro. So ich, my. That was my office. Seid ihr das? Ihr, you both, you all. Waren das euer Kinder? So, were those your children? एक ये बच्चा, एक ये बच्चा. Bist du das? Bist means are, du means you. Waren das deine Freunde? Das ist Ute, this is Ute. Das war sein Zimmer. That was his room. दास दिन कायको और नताशा. तो ये कौन है, स्टूडेंट्स हैं. और दास वार इयरा लहरन. इयरा मीन्स देयर फीमेल टीचर. जिन जी दास वार दास ईयर मान योर मैन. ओके, क्लियर? Alles klar? Understood? सर एसेस लेना है. Yes, कुणाल, क्या लेना है? सर एसेस लेना है. डन.
नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये भी पोजेसिव आर्टिकल की एक्सरसाइज है, ठीक है। सो ये आपको होमवर्क में करना है सेम इसी तरीके से। हाउस ऑफ काबा, पोजेसिव आर्टिकल, ergänzen Sie. Wie viele Zimmer? Wie viele means how many. How many Zimmer room hat has Ihre Wohnung, Herr Neumann? तो Herr Neumann फॉर्मल है इसलिए ईयर आया है। ओके, सो ये आपका हाउस ऑफ गवर्न, सिर्फ पोजेसिव आर्टिकल कंप्लीट करें। डन। द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये भी आपकी होमवर्क है 23 पेज पे। सर नहीं ले पाया सर, पूरा नहीं आ रहा। पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 8, माइन ट्राम हाउस, माई ड्रीम हाउस, ergänzen Sie die unbestimmten Artikel im Nominative oder Akkusative। तो आपने कंप्लीट करना है ein oder einer मीन्स indefinite article, im nominative और accusative। सो वो accusative भी हो सकता है और im nominative भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टिप क्या दी हुई है, im plural gibt es keinen unbestimmten Artikel। so means unbestimmt article has no plural, okay। एंड यहाँ पर जो as gift and gift as is also always nominative, sorry accusative। as gift और gift as is also always accusative, और इनकी मीनिंग क्या होती है, there are और there is, ओके। एंड यहाँ पे आपने सिर्फ इन सब में क्या आएगा, unbestimmte आर्टिकल, आपने बस नॉमिनेटिव और अकुजाटिव का ध्यान देना है। जैसे किस तरीके से करना है, माई ट्राम हाउस इज ग्रॉस उन आल्ट, माई ड्रीम हाउस इज ओल्ड एंड बिग, एर हार्ट फियर सिमर, इट हैज 4 रूम, एन अक्यूशा, देन अब यहाँ पे हार्ट, ये क्या है, हापन, हापन वर्ब अकुजाटिव है, सो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अकुजाटिव होंगे। तो ये आईना, क्यूशा, ये अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। देन बार्डिसिमर, das Badezimmer, so ein accusative object, und floor, floor there, floor means hallway। so अब ये यहाँ पे there है, तो accusative में ein changes into ein, ओके। इस तरीके से आपने कंप्लीट करना है। डन। यस सर। द नेक्स्ट एक्सरसाइज, द सिमर फॉन सुजाना, द रूम ऑफ सुजाना
So Susanna's room. Ergänzen Sie den Text. Complete the text. Welches Zimmer ist das? A oder B? तो पहले आप ये टेक्स्ट कंप्लीट करोगे. टेक्स्ट कंप्लीट करने के बाद आप देखोगे कि आ वाले की बात हो रही है या फिर बे वाले की बात हो रही है. ठीक है. तो ये पिक्चर्स दी हुई हैं. आपने इस अकॉर्डिंग अपने होमवर्क करना. हाउस ऑफ गाबा. तो ये एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी कोर्स बुक में करी थी. इससे सेम इसी जैसी थी. तो यहाँ पे सुजाना इज टिश लैरन. टिश लैरन मीन्स कैबिनेट मेकर. Sie lebt mit zwei Freundinnen in einer Dash. So she lives with two friends in a Wohngemeinschaft. Wohngemeinschaft means PG or shared apartment. Wohnge. So यहाँ पे आधा वर्ड दिया हुआ है Wohnge. अब इसको कंप्लीट करना है हमने Mannschaft. So Wohngemeinschaft means PG or shared apartment. तो यहाँ पे हिंट के लिए हाफ हाफ वर्ड दिए हुए हैं स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स. ठीक है. जैसे दासिस्ट जो टी टॉयर एक्सपेंसिव. ठीक है. ईयर सिमर इज हर रूम इज ग्रॉस und hell. So her room is big and bright. Es gibt ein Fenster. There is a window. ठीक है. Aber keinen Balkon. But no balcony. ओके. सो आधा तो मैंने ही कर दिया, बाकी आपने कर लिया. सर हो गया. डन. ठीक है. सर छुट्टी कर दो. सर छुट्टी कर दो सर, माथा बहुत दुख है. अभी तो स्टार्ट हुई है क्लास. चलो ठीक है, देखते हैं, अभी करते हैं. ठीक है. Schlafen to sleep. Ergänzen Sie die verb form. Complete the verb form. So यहाँ पे ये आपका हाउस ऑफ गाबा लास्ट होमवर्क एक्सरसाइज. तो शिलाफा और होमवर्क सारा करना है. ठीक है. छोड़ना नहीं है. ओके सर. Du schläfst, schläft, wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen. ओके. सो यहाँ पे डू एंड एरजी में जो रूट वर्ड था वर्ब का ए के ऊपर उमलाउट लग गए. ठीक है. सो डू स्लेफ्ट एरजी स्लेफ्ट. तो ये श्लाफन वर्ब आपने कंप्लीट करना है. वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कंजुगेट होगी. इस श्लाफा गैर. गैर मीन्स लाइक और ग्लैडली. ओके. इस तरीके से आपने कंप्लीट करना है. क्लियर. खाली हाँ सर. स्लाफा. सर स्लाफा खाली लगाना है, मतलब ये इश डू एरजी के हिसाब से. क्या पूछ रहे हो आप. सर ये वाला जो स्लाफा खाली लगाना है सर, इश डू एरजी के मिला के पढ़ के. मतलब बोल क्या रहे हो, वो क्लियर बोलो आप. मतलब सर ये रीड की करके खाली इश डू एरजी में खाली स्लाफा लगाना है. इश में लगाना है सिर्फ श्लाफा. डू एरजी में स्लेव्स एंड एरजी स्लेव्स, सबकी कंजुगेशन अलग अलग है. जी. हाँ, तो फिर आप क्या पूछ रहे हो. सर जैसे टू में सर, जैसे डू, अगर डू कैसे अच्छा. लगा. सो यहाँ पे ये पूछ रहे हो माइन फाटर, राइट. जी. तो माइन फाटर में एरजी की कंजुगेशन लगे. क्यों. क्योंकि ये सिंगुलर है ना, और एर मीन्स ही. तो ही भी सिंगुलर है इसलिए. ओके. ओके. डन. देन 10 मिनट और. ओके सर.
Okay, so Wochentage. Wochentage means weekdays and Wocha means week. So weekdays कौन कौन से हैं? Montag, Monday, Dienstag, Tuesday, Mittwoch, Wednesday, Donnerstag, Thursday, Freitag, Friday, Samstag, Saturday, Sonntag, Sunday. ये वोकेंटाग मीन्स वीकडे. सो वीकडे कितने होते हैं? 5 होते हैं. कौन कौन से? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. मॉन्टाग, dienstag, मिटवॉक, डोनस्टाग एंड फ्राइटाग. वोकेनेंडा मीन्स वीकेंड. ये फ्राइटाग, जामस्टाग एंड फ्राइटाग क्या है? वीकडे है. ठीक है. सो वोकेनेंडा वीकेंड, जामस्टाग एंड जोनटाग मीन्स सैटरडे और संडे आपका वीकेंड. ओके. अब यहाँ पर सबका आर्टिकल देयर है. सारे जो ये वीक ऑफ द डेज है ये आपका मस्कुलिन है सारे. आप इनको शॉर्टकट में किस तरीके से लिखते हैं? एम ओ. अगर यहाँ पे एम ओ देन पॉइंट लगा हो तो आप समझ जाओ कि ये मंडे लिखा हुआ है. DIMIDOFRSASO ये इनके शॉर्ट फॉर्म. ओके, क्लियर. अब इनको लिखते कैसे हैं सेंटेंसेस में? सो यहाँ पर जब भी आप वोकेंटागा लिखोगे मीन्स वीकडेज लिखोगे तो यहाँ पे आप लगाओगे आर्म प्लस टाग. आर्म प्लस डे. फॉर एग्जाम्पल आर्म फ्राइटाग, आर्म मॉन्टाग, आर्म देन डे जोनटाग. ठीक है. तो जब भी आप डेज यूज करते हो देन आप हमेशा आर्म यूज करोगे उनके पहले. क्लियर. यहाँ पर कोई डाउट? सर आम मीन्स क्या है? एम आम, आन प्लस देम ये एक प्रिपोजिशन है. ठीक है. प्रिपोजिशन का टॉपिक हमने करना है, अभी डिस्कस नहीं हुआ. 6th चैप्टर में डिस्कस होगा. ठीक है. तो यहाँ पे आन प्लस देम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आम. तो यहाँ पे आम जोंटा. जब भी आप बस एक चीज सेट कर लो माइंड में कि जब भी आप क्या यूज करोगे? वीकडेज यूज करोगे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. आप यूज करने से पहले हमेशा आम लगाओगे. ओके. देन आप जोंटाग, देन आप सेंटेंस बना सकते हो. ओके. ओके. ठीक है. देन मोनाटा मीन्स मंथ्स. मोनाट मीन्स मंथ. तो देयर यानुआर. सो मंथ का भी आर्टिकल सबका देयर है. ठीक है. सो यानुआर जनवरी, फेब्रुआर, मार्च, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ठीक है. तो ये क्या है? आपके मंथ्स, 12 मंथ्स टोटल. अब जब भी आप मंथ को यूज करते हो, ठीक है, मंथ लिखोगे तो आप हमेशा एम का यूज करोगे. एम प्लस फॉर एग्जाम्पल यानुआर. एम क्या है? ये प्रिपोजिशन है जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं इन प्लस देम. ओके. इन प्लस देम. फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपोजिशन लगाओगे एम प्लस मोनाट, जैसे एम माई. ओके. सो हमेशा जब भी आप यूज करोगे मंथ्स को तो आप हमेशा माई यूज करो. मतलब मंथ को यूज करोगे देन आप प्रपोजिशन आप हमेशा एम का यूज करोगे. क्लियर. तो ये फिक्स प्रपोजिशन होती हैं. ओके. एनी डाउट्स यहाँ पर? सर क्या बोलते हैं सर? पूछो. सर हम लोग डेज में सर एम लगाते हैं और मंथ्स में आईएम लगाते हैं. मतलब करेक्ट. शॉर्टकट में लिखना है तो. हाँ हाँ. आपने ये नहीं लिखना, आपने ये लिखना है बस. ठीक है. इम जैन इम फेब वैसे. हाँ हाँ. एम फेब्रुआर, एम अप्रैल, एम माई, एम यूनी, एम यूली, इस तरीके से. देन यारसाइटन. यारसाइटन मीन सीजन्स एंड यारसाइट सीजन. तो सीजन कौन से होते हैं? 4 होते हैं. समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. तो देयर जोमर, इनका भी आर्टिकल देयर है. ये भी मस्कुलिन है. ठीक है. जोमर, देयर विंटर, देयर फ्रूलिंग, देयर हेर्ब्स्ट. ठीक है.
अब इनको किस तरीके से लिखना है, जिस तरीके से आप मंथ लिखते थे, राइट, सेम उसी तरीके से इसमें भी आपने एम लगाना है, एम प्लस यारसाइट, एम प्लस सीजन, फॉर एग्जाम्पल एम जोमर और एम फ्रूलिंग, ओके। सिर्फ आपने जो डेज है, डेज में सिर्फ आम लगाना है, आम प्लस टाग, देन एम प्लस मोनाट, एंड एम प्लस यारसाइट सीजन, ठीक है। इन 3 चीजों का ध्यान रखें। क्लियर? जी सर। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इनको याद कर लेना आप, ठीक है। डन? जी सर, ये याद है। नेक्स्ट नहीं लिया? नहीं सर, ये याद है। ओके गुड, याद है तो रूल्स याद रखना, ठीक है, किसके साथ क्या यूज करना है। डन? जी नेक्स्ट लास्ट पेज। कंप्लीट? जी सर। Okay, that's enough for today's class. थैंक यू सर। Bye bye. बाय बाय, थैंक यू सर, गुड नाइट।